Okay, so what we learned in the last lecture was that agriculture, it is the important occupation for the people of India, and we produce different varieties of crops. So these crops, they are divided into two broad categories, that is kharif crops and rabi crops. मैंने आपको बताया था ये important question है आपका, difference between kharif crop या rabi crop, या what are kharif and rabi crops, और give the examples of kharif and rabi crops. ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, अच्छे से याद रहना चाहिए kharif crops कौन से होते हैं और rabi crops कौन से होते हैं. So when we say kharif crops, they are grown in the rainy season, that is from June to September, and the examples include paddy, maize, soyabean, groundnut, cotton. Then rabi crops, they are grown in the period between October to March, that is in the winter season. And wheat, gram, pea, mustard, linseed, these are the examples of rabi crops. And apart from that, the pulses, vegetables, they are grown during summer. Then another important question जो कि हमने discuss किया था, that was the basic practices of crop production. तो जहाँ पे हमने 7 steps पढ़े. First is preparation of soil, then sowing of seeds, adding of manures and fertilizers, irrigation, protection from the weed, harvesting and storage. और इसमें से हमने जो discuss किया था, that was about preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, and then we were looking on to irrigation part. Okay, so the first one we have is under preparation of soil. See, what do we need is, first we need to prime the soil. Okay, soil को हमको prime करना पड़ेगा so that it supports the growth of the plant. So what we do in soil preparation, we turn the soil and loosen it. Okay, थोड़ा सा moisture होना चाहिए, loose होना चाहिए soil. So now inside the soil there are present earthworms, and these earthworms are the friendly microbes. Okay, so what these earthworms do, चलो कौन बताएगा आंसर, पिछले लेक्चर में पढ़ा था. Quickly raise your hands. What these earthworms do, why they are known as the friends of farmer? मैम कहना है. Yes बेटा. मैम अर्थवर्म है ना, मिट्टी को खोखला करता है, मतलब उसको लूज करता है. और लूज सॉइल है ना प्लांट्स के लिए अच्छी कहलाती है, इसीलिए फार्मर को मतलब हेल्प करता है अर्थवर्म, इसीलिए उसको फ्रेंड बोलते हैं फार्मर का. वेरी गुड, वेरी गुड. सो कैसे लिखेंगे हम इसको? earthworms help in loosening the soil, and this loosened soil is favorable for the growth of microorganisms. ठीक है, वेरी गुड. हाँ, ऐसा सभी को आंसर करना है. Okay, then we have different processes also available for preparation of soil, और इन दो प्रोसेस को भी हमने डिस्कस किया था. टिलिंग, जिसको हम बोलते हैं टिलिंग, या प्लोइंग. ओके, सो ये एनिमल्स की मदद से भी हो सकता है और मशीन्स की मदद से भी हो सकता है. ओके, सो दिस प्लो you can see they are made up of wood and iron. So before plowing क्या किया जाता है, सॉइल अगर ज्यादा ड्राई होती है तो उसको थोड़ा सा मॉइस्ट किया जाता है पानी डाल के. ओके, एंड प्लो का काम क्या होता है, दैट दे ब्रेक द बिग बिग क्लम्प्स प्रेजेंट इन सॉइल. सॉइल के अंदर अगर मान लो बड़े बड़े पत्थर हैं, तो प्लो क्या करता है, उसको छोटे छोटे
पीसेस में ब्रेक कर देता है. ओके, देन नेक्स्ट वन इज, ओके, ये एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है. इस तरह से प्लो को चलाया जाता है एनिमल्स की मदद से. एंड नॉट इवन फॉर जस्ट preparing the soil, but it is also used for adding the fertilizers, also for removing the weeds and scraping the soil. Then we have hoe or X, जिसको हम बोलते हैं. It is also used for loosening the soil as well as for removing the weeds. Then this is cultivator. So now this is what you can do with the help of tractors. आप animals को की मदद लिए बिना आप tractors की मदद से soil को prepare कर सकते हो through the cultivators. So these cultivators are tractor driven. और advantage क्या है cultivator का, कौन बताएगा quickly? चलिए बताइए example. Yes. Ma'am, it saves our time and labor. It saves time and labor. Very good. Then another advantage is even spreading रहता है. Okay, जो soil है उसमें उसको evenly mix करता है. Then यहाँ तक हमने देख लिया था preparation of soil. Then दूसरा था हमारे पास sowing of seeds. Now this sowing is also important in crop production because here you can see जो seeds आप select करोगे वही seeds grow होंगे. ठीक है. So it is very much important to select good quality of seeds. So the seeds should be clean and healthy. Okay. Farmers ऐसे करते हैं कि जो उनको yield मिलता है उसमें से वो select कर लेते हैं अच्छी quality के seeds और फिर उसको use करते हैं next generation को लाने के लिए. ठीक है. तो ये जो seeds हैं ये अच्छी quality के होने चाहिए, दिखने में अच्छे होने चाहिए, healthy होने चाहिए, so that जो भी हमको yield मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा, healthy मिलेगा. Okay. फिर हमने ये activity भी देखी थी जिसमें हमने observation देखा था कि those seeds which sink at the bottom, जो नीचे होंगे वो कौन से होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे? Healthy seeds. Healthy seeds, yes. And those which will float on the surface, वो कौन से seeds होंगे? Unhealthy seeds. Or Unhealthy होंगे. Yes, क्योंकि उनका डेंसिटी कम है इसीलिए वो ऊपर फ्लोट हो रहे हैं. So that means वो अंदर से वीक हैं and that is why they are floating on water. So वो seeds को हम यूज नहीं कर सकते. Okay, then sowing के लिए भी हमारे पास traditional tools available हैं, just like a funnel जिसमें seeds को भरा जाता है and then it is pressed down through the pipes having sharp ends. Okay, so ये जो pipes हैं ये क्या करते हैं, pierce करते हैं soil के अंदर और seeds वहां पे छटकाए जाते हैं. ठीक है, seeds वहां पे spread किए जाते हैं. Then seed drill is also available. So seed drill, we can use it with the help of tractor and advantage है इसका that it will sow the seed uniformly at proper distances and proper depth. Okay, so and it also ensures that the seed is covered by the soil after sowing. Okay, so ये protection भी देता है एक type का. फिर हमने ये भी देखा था manure और fertilizers के बीच में difference. So manures are the natural organic compounds made from the dead remains of plants and animals. Okay, and fertilizers are the chemical compound. They are specific for the plant growth. Okay, so they are rich in particular nutrient. But again, there are disadvantages also for fertilizers. Whenever there is an excessive use of fertilizer, it may leave the soil less fertile. Okay, ज़्यादा अगर हम fertilizers use करते हैं तो soil की fertility decrease हो जाएगी. And also it becomes a source of water pollution. Okay,
ऑन द कॉन्ट्ररी इफ यू सी मैन्योर, उसके क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है सॉइल की, एंड अनदर थिंग इज इट मेक्स द सॉइल पोरस. So because of this, the exchange of gases become easy. Okay, and also it increases the number of friendly microbes. It improves the texture of the soil. Okay, then मैंने आपको बोला था ये चीज आपको याद रखनी है. Some common examples of fertilizers: urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK. These are the examples of fertilizers. Okay, तो ये names आपको याद रखने हैं. Then what is the alternate way to replenish the soil? जैसे मान लो soil एक particular nutrient में लेस हो गया है, कम हो गया है, सॉइल में से मान लो नाइट्रोजन कंटेंट चला गया है, तो हम किस तरह से रेस करेंगे कंटेंट को? यस आश्वी. Ma'am, we can grow alternate crops. Alternate crops. Okay, very good. So what kind of alternate crops can be grown? Ma'am, if we are growing that first pea plant, and then we can grow that wheat plant. Okay, so what we can do is we can grow the legumes. So legumes के अंदर क्या होता है? There is a presence of rhizobium bacteria. तो ये जो rhizobium bacteria होता है ये क्या करता है? It helps in capturing the nitrogen from the atmosphere. वो नाइट्रोजन को कैप्चर करके वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि प्लांट नाइट्रोजन को ले सके. ओके, फिर उसके ऑल्टरनेट में हम वीट को ग्रो कर सकते हैं. सो अब जो सॉइल थी जिसमें नाइट्रोजन पहले नहीं था, वो लेग्यूम्स राइजोबियम की वजह से आ चुका है. वीट को नाइट्रोजन मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट सीजन में हम फिर से लेग्यूम्स को ग्रो कर सकते हैं. तो इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन. And in this way we can replenish the soil with nitrogen. Okay, then मैंने आपको बताया था relation of rhizobium bacteria with the legumes. So symbiotic relation होता है. What do we mean by symbiotic relationship? क्या मतलब है symbiotic का? Yes Ashvi. Ma'am, if one gives the shelter, the other gives the nitrogen or the needful thing to them. Okay, so we can say symbiotic relationship is a type of relationship where both the organisms are benefited. दोनों को ही फायदा हो रहा है. All right, so see, when we say rhizobium bacteria, so rhizobium bacteria क्या करता है? नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करता है. ठीक है, प्लांट नाइट्रोजन नहीं ले सकते डायरेक्टली, तो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है. ठीक है, अब राइजोबियम बैक्टीरिया खुद का खाना नहीं बना सकता, तो प्लांट उसको, लेग्यूम प्लांट्स उसको फूड भी देते हैं, शेल्टर भी देते हैं. तो इस तरह से आप देखो कि दोनों का बेनिफिट हो रहा है. लेग्यूम्स प्लांट है उनका भी बेनिफिट हो रहा है और राइजोबियम का भी बेनिफिट हो रहा है. So where both the species are benefited, we call this type of relationship as symbiotic relationship. Then this is a quick comparison between the fertilizers and the manure. Very very important, आपको याद रखना है इसको. Okay, then irrigation. यहाँ से हमको शुरू करना है टॉपिक. So irrigation, when we say, see, we as living organisms, we require water to live. जितनी भी हमारी एक्टिविटीज है मोस्टली दे आर ऑल वाटर बेस्ड. हमको पानी चाहिए होता है हर एक एक्टिविटी के लिए. ओके, सो दिस वाटर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ flowers, fruits, seeds or plants. Okay, now this water, it is absorbed by the plant roots. Not only water, but water के साथ साथ आप देखोगे तो minerals और fertilizers भी absorb होते हैं.
ओके, सो हम ये बोल सकते हैं कि वाटर इज एसेंशियल, बिकॉज अगर पानी नहीं होगा तो सीड्स विल ऑल्सो नॉट जर्मिनेट. ओके, न्यू प्लांट्स ग्रो ही नहीं होंगे. देयर विल बी नो जर्मिनेशन अंडर ड्राई कंडीशंस. ओके, सो इरिगेशन क्या होता है? इट इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स. इसको हम बोलते हैं इरिगेशन. बेसिकली वाटर इज ए इंपॉर्टेंट एलिमेंट. ओके, सो पानी ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत जरूरी है. सो नाउ वी हैव डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल. अब क्योंकि जो फील्ड्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, सो उनमें आप मैन्युअली पानी नहीं दे सकते. सो वी हैव adopted a method for supplying water. This is called as irrigation. So how do we define irrigation as? It is the supply of water to crops at different intervals. Okay, पूरा जरूरी नहीं है 24 घंटे उसको हमको पानी ही देते रहना है, पर कुछ कुछ समय में हमको उसको प्लांट को, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द प्लांट, वी हैव टू वाटर द प्लांट. ओके, so the time and frequency of irrigation will vary from crop to crop. जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा है कि जो राइस होता है, पैडी, उनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है. ठीक है, तो वहां पे आपको टाइम और फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी. उसके कंपैरिजन में आप कोई और क्रॉप ले लोगे तो उसको इतना ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है. ठीक है, तो वहां पे जो टाइम है या फिर फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी. Okay, so the time and frequency of irrigation, it varies from crop to crop, soil to soil, and also season to season. ठीक है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि हमको किस टाइप का इरिगेशन प्रोवाइड करना है. एक तो इट डिपेंड्स ऑन क्रॉप, इट डिपेंड्स ऑन सॉइल एंड ऑल्सो ऑन सीजन. Now see, these are the different sources of irrigation. कहाँ से हमको पानी मिल सकता है? ठीक है, कि क्या क्या हमारे पास सोर्सेस है जहां से हम पानी ले सकते हैं प्लांट के लिए. सो वी हैव वेल्स, ट्यूब वेल्स, जो हैंड पंप्स आते हैं ना, ट्यूब वेल्स. ठीक है, देन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स. ये सारे सोर्सेस हैं जहां से हमको पानी मिल सकता है. Now we have to see different methods of irrigation. This is an important question again. So what are the different methods available for irrigation? Now see, traditional method देखें अपन. Traditional means जो पुराने जमाने में यूज करते हैं. मॉडर्न मेथड्स नहीं आएंगे इसमें. जो पुराने जमाने में यूज होते हैं उनको हम ट्रेडिशनल बोलते हैं. ठीक है, मतलब जो सालों से यूज होते आ रहे. So you see this water, it is available in the wells, in lakes and canals, and it is lifted up by different methods in different regions. So जैसे कि हम कैटल की मदद से या फिर हम ह्यूमन लेबर से, ये जो भी मेंशन जगह हैं, वेल्स हैं, लेक्स हैं, कैनल्स हैं, यहाँ से हम पानी पुल कर सकते हैं, उठा के ला सकते हैं. सो कंपैरेटिवली आप देखोगे तो ये जो सारे मेथड्स है ना, ये बहुत चीप हैं, लेकिन इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं है. ओके, क्यों एफिशिएंट नहीं है? क्योंकि ह्यूमन लेबर इसमें बहुत सारा यूज होता है. इवन कैटल्स आर बीइंग यूज, एनिमल लेबर भी यूज रहता है, और प्लस दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो. ओके, सो देखेंगे ट्रेडिशनल वेज कौन कौन से हैं. वन इज मोट और द पुल्ली सिस्टम, एंड अनदर वन इज द चेन पंप. ओके, सो ये जो आप वेल्स में से देख रहे हो, ये पुल्ली सिस्टम में आता है. ओके, और दूसरा आता है चेन पंप्स. देन पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर. डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दिस पंप. मोटर से जो हम पानी खींचते हैं ना, चेन पंप जिसको हम बोलते हैं, तो जो मोटर से आप पानी खींचते हो वो आपका आ जाता है पंप में. वो भी एक ट्रेडिशनल मेथड ही है,
And again, the disadvantage is because we have to use diesel, biogas or electricity or solar energy. ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है. There are different solar panels, and ये solar panels की मदद से ही ये मोटर्स चल सकती है, ऐसे ही धूप में रखने से नहीं चलेगी. Okay, so the disadvantage is because it becomes quite expensive because we have to pay for the fuel. Then there are modern methods of irrigation. Now, what are the modern methods of irrigation? The first one is the sprinkler system. तो देखो नाम ही बता रहा है sprinkler. So this system, it is more useful on the uneven land and where sufficient water is not available. यहाँ पे जैसे आपने वो स्प्रे पंप जैसा देखा होगा, आप कभी हेयर कट वगैरह के लिए जाते हो तो नहीं स्प्रे होता है पानी, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी पानी स्प्रिंकल होता है, स्प्रे होता है. सो ये जो तरीका है स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस इज यूजफुल बिकॉज मान लो अगर लैंड अनइवन है तो वहां पे भी पानी स्प्रिंकल होके जाएगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा. और दूसरा जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो ये है कि ऐसी एरियाज जहाँ पे वाटर स्केर्सिटी है, जहाँ पे पानी की ऑलरेडी कमी है, सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है, तो उन जगहों पे आप ये स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज कर सकते हो इरिगेशन के लिए. क्योंकि क्या हो रहा है, अल्टीमेटली देयर इज सेविंग ऑफ वाटर व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो इफ यू कैन सी द कंस्ट्रक्शन, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, ये आपने देखा भी होगा बहुत सारी फील्ड में, ये इस तरीके के पाइप्स लगे हुए हैं और यहाँ पे नोजल है, यहाँ पे टॉप पे नोजल्स हैं जहाँ से पानी स्प्रे होता है. So these are the perpendicular pipes. They have rotating nozzles on the top and they are joined to the main pipeline. यहाँ से पानी मिल रहा है, मान लो ये सोर्स है, तो ये मेन पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं ये सारे छोटे छोटे पाइप्स. ओके, एंड दे आर ऑल प्लेस्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. आप देख रहे हो डिस्टेंस भी सबके बीच में एकदम यूनिफॉर्म. ओके, सो जैसे ही वाटर फ्लो होता है, व्हाट विल हैपन, the pipe under the pressure will sprinkle the water. Okay, so जैसे कि रेन हो रही है, रेन के जैसे the water will be sprinkled on the crop. So this type of method, this type of sprinkler method, it is very much useful for the sandy soil. Okay, क्योंकि वहां पे पानी भी चाहिए और इक्वल अमाउंट में भी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में भी चाहिए. थोड़ा सा भी अगर रह गया तो क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा. सो ऐसी जगह पे सैंडी सॉइल में दिस स्प्रिंकलर सिस्टम इज वेरी मच एफिशिएंट. ओके, देन सेकंड मेथड अंडर मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन इज द ड्रिप सिस्टम. नाउ ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या होता है, वाटर विल फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप at the position of the roots. So plant की जो roots होती हैं उसके वहां पानी जाएगा drop by drop, इसीलिए इसको बोला जाता है ड्रिप इरिगेशन. जैसे कि आपने देखा होगा कि वो when we are ill and when the doctor tells that we need to have a drip, बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है तो ड्रिप्स चढ़ाई जाती है, ग्लूकोज की बॉटल्स चढ़ाई जाती है, तो वो जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, ड्रिप बाय ड्रिप दिया जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप. ठीक है, तो इसी तरीके से पानी यहाँ पे भी क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप सप्लाई किया जाएगा क्रॉप्स को. नाउ दिस इज ऑल्सो द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे पानी की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगी एंड स्ट्रेट अवे द वाटर विल गो इनटू द रूट. Okay, so water is not wasted, and again it is a useful method where there is scarcity of water. जहाँ पे पानी की कमी है वहां पे ये मेथड को हम अच्छे से यूज कर सकते हैं. कौन सा मेथड, ड्रिप सिस्टम. ऑल राइट, एनी डाउट्स सो फार? ऑल ऑफ यू?
Is that clear? Yes, ma'am. Okay, सभी को आंसर करना है. Okay, be attentive and be interactive also. Okay, so this is an important question. Irrigation, traditional methods, जिसमें दो टाइप आते हैं, moat और the chain pump, and then modern methods of irrigation. इसके अंदर भी आपके दो मेथड्स हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स. नाउ व्हाट आर दिस वीड्स? लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. हु विल आंसर? सारे आंसर आश्वी देगी तो बाकी सब क्या करेंगे? सभी को आंसर करना है. सबके हैंड्स रेज हो जाने चाहिए. मैम को सिलेक्ट करना चाहिए कि इसको आंसर बोलने को बोले. एक ही जना हाथ ऊपर करता है, एक ही जना आंसर देता है. ये बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपको, तो सभी इंटरैक्टिव रहिए क्लास में. यस आश्वी बोलो. Then the unwanted plants that grow around the plants and absorb nutrients from the soil. Okay, very good. Yes, Pratham, you have also given correct answer. So yeah, if you don't want to speak up, you can write in the chat box also. That is also fine. So basically, weeds are the unwanted plants that will grow along with the main plant and that will derive nutrients from the main plant. ये unwanted plants हैं, फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि ये main plant के साथ साथ grow करते हैं और Ma'am, your volume is very slow. Voice is coming very slow. One second. Now is it okay? Yes. Okay. So see, this weeds, they are the unwanted plants, and these unwanted plants, they grow along with the main plant. Okay. So एक तो ये काम के plants नहीं, main plant के साथ साथ grow हो रहे हैं, और दूसरा चीज, they derive nutrients from the main plant. So main plants जो भी nutrients ले रहा है, वो ये weed भी साथ साथ में लेते जाते हैं. So ऐसा हम बोल सकते हैं कि they kind of compete with the main plant. कंपटीशन हो रहा है दोनों के बीच में. ओके. सो ऐसे में आप देखोगे तो जो मेन प्लांट है उसकी क्वालिटीज को भी कॉम्प्रोमाइज देखने को, उसकी क्वालिटी में भी हमको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा. ओके. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट अवर मेन क्रॉप प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वीड्स. ओके. सो दिस वीड्स आर द अनडिजायरेबल और द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो naturally along with the main crop, and they are called as weeds. This is the definition. Now the removal of weeds is called as weeding. क्योंकि ये जरूरत के नहीं है इसीलिए हमको इनको रिमूव करना पड़ेगा. So that removal of weeds is called weeding, and weeding is necessary because what do weeds do? They compete with the crops for water, nutrients, space, and for light. So this will definitely affect the growth of the main crop. Now, how would you carry out this activity of weeding? Tilling before the soil of the crops helps in uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. So, जब हम tilling करते हैं, ठीक है, so उस समय हमें देखना है कि कोई weeds present नहीं है soil के अंदर. Okay? कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो वीड्स हैं ये सॉइल में ही रह जाते हैं, और फिर जैसे जैसे सॉइल को वाटर मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, या तो मतलब न्यूट्रिएंट्स के अंदर मैन्योर्स है, फर्टिलाइजर्स है, तो जैसे जैसे सॉइल को वो मिलते जाते हैं वैसे वैसे वीड्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, वो भी ये न्यूट्रिएंट्स को लेने लगते हैं. ओके. सो सम वीड्स यू कैन सी दे इंटरफेयर इवन इन द हार्वेस्टिंग, and they may be poisonous for animals and for human beings. कुछ कुछ ऐसे weeds होते हैं जो कि they are totally harmful, dangerous or poisonous, not only for the animals, those who are feeding on the crops, but also for the human beings. Okay, so that is why ये जो weeds है इनका removal बहुत ही ज्यादा important है. They need to be removed
for a better crop variety. Okay, now the best time for the removal of weeds is before they produce flower and seeds. देखो एक बार उसने फ्लावर और सीड्स बना लिए ना, तो फिर वो वापस से नेक्स्ट जनरेशन में भी ये चीज कंटिन्यू रहेगी. ओके, सो उससे पहले ही, इससे पहले कि वीड मैच्योर हो जाए और वो फ्लावर बना दे, सीड्स बना दे, ताकि उसका प्रोपोगेशन इजी हो जाए, वी नीड टू रिमूव देम. ओके, नाउ अगेन द मैनुअल रिमूवल will include physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground. ठीक है, मैन्युअली हम कैसे कर सकते हैं? खुद से अगर हमको करना है तो फिजिकली हमको एक एक वीड को अपरूट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा या कट कर देना पड़ेगा क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. ओके, उसको बढ़ने देना ही नहीं है, कट करना है. सो वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी. ये आपने किचन में देखा होगा, ऐसा फ्लैट सब्सटेंस होता है, उसको हम खुरपी बोलते हैं, और हैंडल होता है और आगे से एक फ्लैट स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसे शेप में अटैच रहता है. सो वी कैन रिमूव दिस वीड थ्रू द खुरपी, और वी कैन यूज द सीड ड्रिल टू अप्रूव द वीड्स. अगर उसको जड़ से निकाल देना है तो सीड ड्रिल्स को भी हम यूज कर सकते हैं. ओके, देन अगर ये स्टेप नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? वी कैन ऑल्सो कंट्रोल द वीड्स बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स. सो दिस टाइप ऑफ केमिकल्स which control the growth of the weeds are called as weedicides. Okay, weedicides अगर हम स्प्रे करेंगे तो क्या होगा? weeds grow नहीं होंगे. Example of a weedicide includes 2,4-D. This is a synthetic one, natural नहीं है, man-made है. Man-made chemical called 2,4-D which is used as a weedicide. So क्या काम है weedicide का? देखो, these are sprayed in the fields to kill the weeds. Okay, इनको सिर्फ छटका दिया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है, so that weeds are killed. Okay, अब इसका एडवांटेज ये है कि they do not damage the main crop. जो मेन क्रॉप है जिसके साथ में ये वीडीसाइड्स ग्रो हो रहे हैं, उनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता, केवल वीड्स को ही किल करता है. ओके, सो वीडीसाइड्स they can be diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer. ठीक है, जितना भी उसका जो भी डाइल्यूशन फैक्टर होता है अलग अलग सभी के लिए रहता है, तो ये जो वीडीसाइड्स हैं इनको भी डाइल्यूट किया जाता है पानी के साथ. ओके, जितना रिक्वायर्ड लिखा रहता है उसके ऊपर वो कॉम्पोजिशन में डाइल्यूट किया जाता है पानी के साथ, और फिर उसको स्प्रे कर दिया जाता है स्प्रेयर के साथ. ओके, सो जैसे कि हमने बोला कि ये जो वीड्स हैं मैच्योर होने से पहले ही इनको वीडीसाइड्स को स्प्रे करके ये वीड्स को हटा दिया जाता है. ठीक है, सो इट हैज टू बी टेकन केयर दैट जितना जल्दी हो सके हम ये वीडीसाइड्स को स्प्रे कर दें, सो दैट वीड प्रॉपर ग्रो नहीं हुआ हो. ओके, एंड प्लस दीज आर द केमिकल्स, वीडीसाइड्स आर द केमिकल्स, सो दे शुड बी हैंडल्ड विथ केयर. One should also cover their nose and mouth with a proper piece of cloth during spraying of these chemicals. क्यों? क्योंकि क्या होता है, चलिए कौन बताएगा? क्या मैम? Why should we cover our nose and mouth with a piece of cloth while spraying weedicides? क्योंकि मैम वो हार्मफुल होता है हमारे लिए. ओके, किस तरह से हार्मफुल होता है मैम? वो हमारे लिए मतलब पॉइजनस होता है बहुत. हाँ, तो अगर हमने उसको इनहेल कर लिया तो क्या होगा? हम ये केमिकल्स को अंदर इनहेल कर लेंगे, बेहोश हो जाएंगे. हाँ, या फिर कोई भी डिजीज हो सकती है. यस मैम. Okay, because they include chemicals. Yes, very good, Aditya and Ashvi. So they include chemicals, and if we inhale these chemicals, they will damage our body organs. Okay, so बार बार इनको अगर हम inhale करेंगे तो ये हमारी body
ऑर्गन्स के लिए काफी हार्मफुल रहेगा, हम बीमार हो सकते हैं, इसीलिए वी शुड ऑलवेज कवर आवर नोज एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लोथ। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स हैं? बिकॉज फिर नया टॉपिक शुरू हो रहा है, हार्वेस्टिंग। No, ma'am. ओके, सो देखो व्हाट इज इंक्लूडेड इन हार्वेस्टिंग और व्हाट इज हार्वेस्टिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर द फार्मर्स, क्योंकि अब आपका क्रॉप पूरा ग्रो हो चुका है, रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्रॉप को निकाल देना है। ओके, सो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब हम क्या करेंगे, क्रॉप को कट कर लेंगे। अब वो मैच्योर हो चुका है, प्रॉपरली ग्रो हो चुका है, अब हम उसको कट करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ओके, सो यूजुअली जैसे कि मान लो सीरियल क्रॉप्स हैं, तो 3 to 4 मंथ्स में वो कंप्लीटली ग्रो हो जाएंगे और फिर हम उनको निकाल सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो हार्वेस्टिंग है ना, इट कैन बी डन ईदर मैन्युअली बाय अ सिकल। सिकल की मदद से एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर आता है, वो आपने देखा होगा, नारियल, पानी वाला नारियल, उससे वो करता है, छिलता है, उसको हम सिकल बोलते हैं। सो ये सिकल से भी हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, और वी कैन यूज अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। अगर मैन्युअली नहीं करना है तो हम मशीन की मदद से भी कर सकते हैं, हार्वेस्टर की मदद से भी हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, हार्वेस्टिंग के बाद जो क्रॉप है, जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्टेड क्रॉप। नाउ दिस हार्वेस्टेड क्रॉप, in this harvested crop the grain seeds need to be separated from the chaff. chaff is जो बाहर एक कवरिंग होती है, ठीक है, तो वो जो कवरिंग है उसको हम chaff बोलते हैं, वो कचरा होता है, उसमें से ग्रेन सीड्स को हमको सेपरेट करना होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग। सो ये होता है हार्वेस्टिंग के बाद। ओके, हार्वेस्टिंग अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स, इसको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली इन इंडिया। ओके, अलग अलग रीजन के जो लोग होते हैं ये इसे फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इतनी मेहनत से फार्मर ने क्रॉप को ग्रो किया है। ओके, सो इतनी मेहनत करी है, उसके पीछे इतना केयर करा है, तो अब जब वो क्रॉप ग्रो हो चुका है, so the farmers they become very happy and that is why they celebrate कि उनकी जो फसल है, उनका जो क्रॉप है वो अच्छे से उगा है। Okay, so that is why this is a big festival. It is celebrated as a festival in our country. And after the crop is harvested, there is a process called threshing, where the grain seeds need to be separated from the chaff. Okay, आपके बुक में देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ऊपर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है पिक्चर में। After harvesting, sometimes stubs are left in the field. कुछ कुछ पार्ट इकट्ठा करके फार्मर लोग रख देते हैं फील्ड में और फिर उसको बर्न कर देते हैं। ओके, सो क्या इससे एयर पोल्यूशन होता है? Yes, ma'am. होता है। तो फिर क्यों ऐसा करते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? देखो एयर पोल्यूशन होता है कुछ हद तक, और अगर बहुत ज्यादा ऐसा भी चांसेस होता है कि फायर, पूरे फील्ड में फायर कैच हो सकता है, क्रॉप्स डैमेज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही केयरफुली कंट्रोल होता है। इसको हम स्लैश एंड बर्न टेक्निक बोलते हैं। सो ये जो स्लैश एंड बर्न टेक्निक है ना, ये क्या करता है, जो भी प्लांट्स मान लो बर्न हो रहे हैं ना, तो उसमें से जितना भी ऐश कंटेंट है वो जल गए, जलने के बाद उस ऐश बन जाएंगे। तो जितना भी ऐश कंटेंट है ना, वो एक तरीके के सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने का तरीका होता है। दैट इज व्हाई फार्मर्स डू दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस। ऑलराइट, आया समझ में? Yes, ma'am. ओके, सो हार्वेस्टिंग हुआ, देन
थ्रेशिंग के बारे में मैंने आपको बताया। सो सी, ये जो प्रोसेस है ना हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग, इट इज, वन सेकेंड, नॉट एग्जैक्टली बीटिंग द क्रॉप, बट ट्राई किया जाता है कि उसको सिर्फ आप या तो आप घुमा दो क्रॉप को एक मशीन में, या तो फिर आप उसको हल्के से जैसे छटकते हैं ना, आपने घर में भी देखा होगा बहुत बार, मम्मी या दादी ये लोग ऐसा करते हैं कि क्रॉप्स को लेते हैं और फिर ऐसे झटक देते हैं। ओके, एक इस तरीके का एक रहता है, आई विल टेल यू व्हाट इज इट। इस तरीके का एक हमारे घर में रहता है। ओके, और यहाँ पे जैसे कि मान लो हमने ग्रेन्स स्प्रेड कर दिए। ओके, एंड देन व्हाट वी डू इज वी होल्ड इट विद द हैंड्स, यहाँ से हम पकड़ते हैं इसको और ऐसे झटक देते हैं। सो उससे भी क्या होता है कि जो कचरा होता है ना, जो शैफ्स होते हैं वो निकल जाते हैं। ओके, now see, harvesting and threshing, it could be carried out with the help of a machine called combine. Okay, so combine का काम क्या होता है कि हार्वेस्टिंग भी हो रहा है, थ्रेशिंग भी हो रहा है। ओके, एंड देन दिस इज अ टाइप ऑफ अ मशीन, ये एक अलग से फार्म में रखा गया होता है, एंड इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शाफ्ट बाय विनोइंग। ओके, तो जैसे मैंने आपको वो बताया ना, एक जो घर में हमारे रहता है, which is a simple equipment, we can place it at home. So same way we have this kind of big machine. Okay, यहाँ पे ये क्या करेगा, ग्रेन्स को अलग कर देगा, शाफ्ट्स को अलग करेगा। तो सारा ये जो कचरा आप देख रहे हो, यहाँ पे डंप्स देख रहे हो, यहाँ पे सारे शाफ्ट्स निकल जाएंगे, एंड देन दूसरी जगह पे आप देखोगे तो आपके ग्रेन्स इकट्ठा हो जाएंगे। ऑल राइट, अंडरस्टूड? Yes. Okay, so that is why, as I told you, this harvest part, so it is celebrated as a festival in our country because of course हमको पूरा अगर farmers को पूरी फसल मिलती है, पूरी yield मिलती है, so that is how they celebrate their happiness. Okay, and then the last part is storage of grains. Okay, now this is again important because देखो आपने एक particular season में crop को तो grow कर दिया, पर अब आपको पूरे साल भर के लिए वो crops को store करके रखना है। Okay, so the storage, it is an important task. What we do is the grains, we need to ensure that the crop grains are to be kept for a longer period of time. ये जितने भी crop grains हैं, हमको इनको लंबे time के लिए preserve करके रखना है। Now, what are the ways through which we need to be careful? एक तो देखो, it should be safe from moisture, गीला नहीं होना चाहिए, अगर गीला होगा तो खराब हो जाएगा। Then insects, rats and microorganisms. Okay, we need to protect our crops from moisture, insect, rats and microorganisms. So that is why we just not have to store, खाली store नहीं करना है, but उनको preserve भी करना है, उनको संभाल के भी रखना है। Okay, so देखो, the fresh crop has more moisture. Okay, जो भी हमने freshly harvest किए तो उनमें moisture content ज्यादा हो। Okay, so अगर हम ये फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स को स्टोर कर देते हैं बिना ड्राई किए, तो क्या हो जाएगा, मॉइस्चर की वजह से दे मे गेट स्पॉइल्ड और दे मे इवन गेट अटैक बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो उसके बाद क्या हो जाएगा, दे विल बिकम डैमेज, उनका जर्मिनेशन कैपेसिटी भी लूज हो जाएगा, एंड देन दे आर ऑफ नो यूज। ओके, so the first step is that before storing the grains, they need to be dried properly in the sun. So when you dry them in the sunlight, the moisture content becomes reduced, and as well as this will prevent the attack of insects and pests as well as bacteria and fungi. ठीक है? Then another way in which after drying, dry हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, we can store the grains in the jute bags
और द मेटालिक बिन्स, ये बड़े बड़े कंटेनर्स में, मेटालिक कंटेनर्स में हम इनको स्टोर कर सकते हैं, या फिर जूट बैग्स में। ओके अगर हमको लार्ज स्केल स्टोरेज चाहिए, इफ यू वांट अ लार्ज स्केल स्टोरेज, जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स से भी कई कई ज्यादा हमारा प्रोड्यूस है। सो व्हाट वी कैन डू इज we can store them in the silos and granaries to protect them। ये इस तरह से आप जो देख रहे हो ना, ये silos हैं या फिर granaries हैं, बड़े बड़े गोडाउन्स में इनको रखा जाता है। and they are also protected from the pests like rat and insects। ये जो पूरी place है, it should be clean, it should be fumigated, free of microorganisms, free of moisture, free of insects and pests। okay now ये जो commercial methods थे, घर पे भी अगर हमको स्टोर करना होता है तो हम क्या करते हैं, नीम लीव्स यूज कर सकते हैं फॉर स्टोरिंग द ग्रेन्स एट होम। थोड़े से नीम के पत्ते डाल देंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, इट विल बी स्टोर्ड फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ये जो नीम लीव्स है ना, इसकी जो लीव्स की जो पंजेंट स्मेल होती है, इट एक्ट्स एज अ रेपेलेंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फॉर रैट्स एंड इंसेक्ट्स। ओके एंड फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज वी रिक्वायर बिग गोडाउन्स, इवन सम केमिकल ट्रीटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूमिगेशन होता है, मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो ये सब केमिकल ट्रीटमेंट्स होने के बाद ये गोडाउन्स को रेडी किया जाता है टू प्रोटेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम पेस्ट्स एंड टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पेस्ट्स। ओके एंड देन द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव इज एनिमल हस्बेंड्री। स्टोरेज क्लियर है सभी को? पूछना है किसी को कुछ डाउट है? All right. Then next we have is animal husbandry. Now when we say animal husbandry, that means what we are doing is we are rearing or domesticating the animals. Okay, हम animals को पाल रहे हैं, उनका टेक केयर कर रहे हैं, एंड उनमें से हमको जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, we are selling those products for the profit purpose. Okay, so what does the definition says that animals, they can be reared at homes or even in the farms. Rearing is you are taking care, you are looking about the upbringing of the animals. So what you have to do is you have to provide proper food, shelter and care to the animals, and if you are doing it on a large scale, तो उसको आप बोलोगे एनिमल हस्बेंड्री। जैसे कैटल है, पोल्ट्री है, ओके ये सब एनिमल हस्बेंड्री के एग्जांपल्स है, फिशिंग है, सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ओके नाउ एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है फिशिंग का। सो व्हाई डू पीपल दे कैच द फिशेस एंड देन दे सेल इन द मार्केट? बिकॉज सी वन थिंग, fish is edible, it is very good for health. Okay, it is good for especially for the bones. Then we get cod liver oil from the fish, and this cod liver oil, it is used in the production of medicines because it is rich in vitamin D. Okay, so likewise we have different husbandries, animal husbandries available, where we can take care of the animals and as well as we can get many very valuable products from them. All right, कोई doubts? किसी को कुछ पूछना है?